Hello everyone. Am I audible and visible? Let me know. Hello everyone. Am I audible as well as visible? Let me know. Okay. So, welcome to An Academy Future Doctors. I myself, first of all, I'll give my introduction. I myself, Dr. Deepthi Karia, MD, PhD Physiology, Associate Professor, and I'm educating MBBS, nursing, and physiotherapy students. I have teaching experience of more than 17 years. Am I audible? Let me check. Okay, okay, that's fine. So, yesterday हमने बात की थी यहाँ पे हम फ्यूचर डॉक्टर अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे हम लोग फर्स्ट एमबीबीएस, सेकेंड एमबीबीएस और फाइनल एमबीबीएस के क्रैश कोर्स जो स्टार्ट किया है दैट इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल पीपल. तो जो भी एग्जाम गोइंग स्टूडेंट्स है, जो फर्स्ट एमबीबीएस, सेकेंड एमबीबीएस, थर्ड एमबीबीएस, फर्स्ट एमबीबीएस के सब्जेक्ट, मेरा सब्जेक्ट फिजियोलॉजी है, मैं फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगी आप लोगों को. ठीक है. तो जो फर्स्ट एमबीबीएस के स्टूडेंट्स है, प्लीज ये लाइव चैट या फिर जो वीडियोस अवेलेबल है, ऑल दिस वीडियोस आर फ्री ऑन आवर future doctor on academy channel. Okay? So you can go through all this video and it becomes very easy for you to learn physiology. Okay, let me tell something about our subscription. Okay? First is plus subscription. You can see here in plus subscription, which are the features. Let me explain first. You can access here both live as well as recorded classes. You can study on the device of your choice. You can study on mobile or TV or anything. Okay? You can learn from India's top educators for your medical exams. Here you can access question bank, which is having more than 25,000 questions. Also, you can compete in live test as well as quizzes, and in near future will be coming with our written notes. Okay? So here, next is iconic subscription. Now, what is iconic subscription? Here you can access to the best, from the best. There are two best options you have from which you can select one of it. Okay? One is Unacademy and Prep Ladder with Unacademy. Here, features I have already discussed. And second one, that is Unacademy and Prep Ladder with Prep Ladder. Here, which are the features? Let me explain. In this second option, you can have clinical and integrated essentials. You can have video lectures from your dream team. You can have question bank 3 with active guidance, system tags, and much more. Also, you'll be having rapid revisions as well as snapshots and treasures in 2021 dream notes. Okay? Now, so you can go on your mobile, you can have this neat PGs, you can choose your subscription, whether it is plus or iconic, whatever you wish, and you can select the duration. Longer the duration, cheaper are the rates. You can use my code, that is ZIPTY10, and you will get 10% discount. Okay. Now, let us start. Yesterday, we have started with, okay. First, let me know, am I audible? Sorry, little bit issues. Okay. Now, so last class. Okay, fine. I'm audible. Okay. So last class में हमने RBC का डिस्कशन जस्ट स्टार्ट किया था. लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? प्लाज्मा प्रोटीन के फंक्शंस, ब्लड के फंक्शंस और प्लाज्मा प्रोटीन्स को कैसे सेपरेट करते हैं. ठीक है. आज के क्लास में हम रेड ब्लड सेल के मॉर्फोलॉजी, उसके फंक्शंस, साथ साथ में रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन,
सिंथेसिस ऑफ रेड ब्लड सेल, जो कि आपका फुल क्वेश्चन आएगा यूनिवर्सिटी में आ सकता है, दैट इज एरिथ्रोपोएसिस. वी विल डिस्कस ऑल. ठीक है. सो starting with red blood cell. Red blood cell, it is all, they are also known as erythrocytes. Erythro means red color. These are non-nucleated disc-shaped elements of blood. Okay? शेप है इसका, यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में, डिस्क शेप, और दे आर आल्सो नोन एज डम्बेल शेप. यहाँ पे यू कैन सी हियर डम्बेल शेप. जब हम क्रॉस सेक्शन में रखते हैं तो दिस इज द शेप ऑफ व्हेन वी कट one red blood cell, you'll get this dumbbell shape. It has special pigment protein that is known as hemoglobin. नॉर्मल काउंट, आरबीसी का नॉर्मल काउंट, ये वैल्यूज याद रखनी है. मेल्स में नॉर्मल काउंट रहेगा 5.2 मिलियंस. कल भी मैंने बताया था, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस. 0.3 मिलियंस. 0.3 मिलियंस को हम 3 lakhs भी लिख सकते हैं पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड. फीमेल्स में काउंट कम रहेगा, 4.7 मिलियंस, प्लस और माइनस 0.3 मिलियंस पर क्यूबिक मिलीमीटर. ये नॉर्मल वैल्यू है. ट्राई टू रिमेंबर दिस वैल्यू. अभी नेक्स्ट है 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन. हमारे आरबीसी के अंदर जो मैंने बताया रेड पिगमेंट है जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन. ठीक है. ये हीमोग्लोबिन 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के अंदर 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैन कैरी कितना ऑक्सीजन? 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन. सो हमारा नॉर्मल हीमोग्लोबिन वैल्यू है जो कि है 15 ग्राम्स. एवरेज 15. मेल्स में होता है 12 to 18 ग्राम्स, 14 to 18 ग्राम्स. फीमेल्स में रहेगा 12 to 16 ग्राम्स पर डेसीलीटर और पर 100 ml ऑफ ब्लड. तो सपोज हम 15 ले रहे हैं तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन कैरी करेगा? दैट इज 1.34 मल्टीप्लाइड बाय 15. ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, कैलकुलेशन में प्रैक्टिकल्स में भी ये क्वेश्चन पूछते हैं. 1.34 मल्टीप्लाइड बाय 15, अराउंड 20 ml ऑक्सीजन हमारा ब्लड. कितना ब्लड कैरी करेगा? डेसीलीटर 100 ml, बिकॉज ये 15 ग्राम जो हीमोग्लोबिन है वो कितने ब्लड में है? 100 ml. मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं. मॉर्फोलॉजी मीन्स नॉर्मल साइज, शेप, और कौन सी साइज है, इसका एडवांटेज क्या है, वो सब डिस्कस. ठीक है. नॉर्मल शेप क्या है? जैसे मैंने बताया डिस्क शेप जिसे कहते हैं हम, और बाइकॉन्केव शेप, सॉरी हियर डिस्क शेप और बाइकॉन्केव. बाइकॉन्केव मीन्स सपोज दोनों साइड से, यहाँ पे यू कैन सी हियर दिस इज कॉन्केविटी, हियर ऑल्सो, बिलो ऑल्सो इट इज कॉन्केव, और डम्बेल शेप्ड ऑल्सो इट इज नोन है. Now, what are the advantages of biconcave shape? Biconcave shape के एडवांटेज क्या है? अगर आरबीसी बाइकॉन्केव शेप का है तो क्यों होता है बाइकॉन्केव? ठीक है. पहला एडवांटेज है बिकॉज बाइकॉन्केव शेप रहेगा तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा. ज्यादा सरफेस एरिया है तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट ज्यादा होगा बिकॉज एरिया अवेलेबल ज्यादा है. ठीक है. यहाँ पे सेकेंड, तो पहला एडवांटेज हो गया, एरिया ज्यादा मिलेगा और उससे होगा रैपिड डिफ्यूजन. रैपिड डिफ्यूजन, और सेकेंड इज लार्ज सरफेस एरिया फॉर डिफ्यूजन. थर्ड उसका एडवांटेज है कि जो ये बाइकॉन्केव है तो व्हाट हैपन, सपोज इसके अंदर फ्लूइड एंटर हो रहा है सेल के अंदर, तो क्या होगा? मेम्ब्रेन के ऊपर टेंशन कम आएगा बिकॉज पहले जैसे ये बाइकॉन्केव है, ठीक है, इसके अंदर फ्लूइड आ रहा है तो पहले वो ये जो है वो स्वेल करेगा, देन इट रप्चर्स. सो third advantage is minimum tension is offered when the volume increases. आरबीसी का वॉल्यूम बढ़ रहा है, सपोज फ्लूइड एंटर हो रहा है तो भी मेम्ब्रेन के ऊपर टेंशन कम आएगा. और फोर्थ एडवांटेज, छोटी छोटी कैपिलरीज हमारी बॉडी में होती है, उसमें से भी आरबीसी धीरे से इजीली स्क्वीज होके निकल जाएंगे. ठीक है. तो 4 एडवांटेज हो गए. नंबर 1 रैपिड डिफ्यूजन होगा, सेकेंड सरफेस एरिया ज्यादा मिलेगा, थर्ड टेंशन कम अप्लाई होगा if volume increases, and fourth one that is they can easily squeeze through small minute capillaries. ठीक है. now मेजर फंक्शन, आरबीसी का फंक्शन क्या रहेगा? बिकॉज एज वी हैव डिस्कस्ड आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन, दैट इज द मेन कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द आरबीसी, हीमोग्लोबिन. ठीक है. हीमोग्लोबिन का काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन? टू कैरी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. इन
ह्यूमन बीइंग, हमारे में ह्यूमन बीइंग में ये हीमोग्लोबिन कहाँ पे रहेगा? आरबीसी के अंदर, वो फ्री नहीं रहेगा। कुछ स्पीशीज में ये हीमोग्लोबिन फ्री होता है, आरबीसी के अंदर नहीं होता है, बट ह्यूमन बीइंग में फ्री रहेगा तो कैपिलरीज में से लीक हो जाएगा और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में आ जाएगा। इट कैन ब्लॉक द glomerular membrane. It can pass through glomerular membrane. It can block the tubule. glomerular filtrate में आएगा और फिर ट्यूब्यूल में पास होगा और ट्यूब्यूल को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, अभी नॉर्मल साइज शेप की बात कर रहे हैं। नॉर्मल, आई जस्ट शो यू, दिस इज द डायग्राम। ये आरबीसी है जो कि मैंने बताया बाय कॉन्केव शेप है, यहाँ पे भी कॉन्केविटी है, नीचे भी कॉन्केविटी। ठीक है, तो ये दिस इज डायमीटर, ये जो है ना यहाँ से यहाँ तक, दिस इज द डायमीटर ऑफ आरबीसी। कंफ्यूजन बहुत होता है, प्लीज ध्यान रखिएगा, दिस इज डायमीटर। डायमीटर नॉर्मल डायमीटर है, अबाउट लिखना है। अगर वैल्यू हम ए की वैल्यू दिखा रहे हैं, ठीक है, ए की वैल्यू लिख रहे हैं तो 7.2 माइक्रोमीटर, या फिर रेंज में आप लिख सकते हैं 6.9 टू 7.8 माइक्रोमीटर। so this is normal size of RBC. थिकनेस मीन्स यहाँ पे सपोज ये वाला आरबीसी ऐसा है बाय कॉन्केव, ठीक है, तो ये जो हो गया ये आपका थिकनेस हो रहा है, दिस वन। ठीक है, तो कॉन्केविटी है तो सेंटर में थिकनेस कम रहेगा यहाँ पे, तो थिकनेस सेंटर में दैट इज 1 माइक्रोमीटर यहाँ पे। ठीक है, और एट द थिकेस्ट पॉइंट हियर थिकनेस इज 2.2 और अराउंड 2 माइक्रोमीटर, डबल रहेगा ये। सरफेस एरिया, पूरा इसका एरिया है, सरफेस एरिया कितना रहेगा? दिस वन, दैट इज 120। इफ यू want to write down, you can write down 120 square micron, sorry, square micron, this one, square micron. And volume of RBC, that is about 85 or 86 to 90 cubic micron. Okay, so these are normal size and values. Okay. Now if you are talking about structure of RBC is their non-nucleated cell। हमने बोला, मैंने पहले ही बताया, न्यूक्लियस नहीं होता इसके अंदर। न्यूक्लियस नहीं होगा तो डीएनए इज ऑल्सो एब्सेंट, सो दे विल नॉट डिवाइड नहीं होते बिकॉज नो न्यूक्लियस नो डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो एब्सेंट, तो एनर्जी कहाँ से आएगी? आरबीसी कि जो वर्क करने के लिए या कोई भी प्रोसेस के लिए एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ग्लाइकोलाइटिक प्रोसेस, उसके जो एंजाइम्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी। आरबीसीज दे हैव नो इंसुलिन रिसेप्टर्स, तो इंसुलिन भी नहीं चाहिए, ग्लूकोज ऐसे ही एंटर हो जाएगा विदाउट इंसुलिन। एंट्री ऑफ ग्लूकोज हियर डिड नॉट रिक्वायर इंसुलिन। नाउ नेक्स्ट आएगा साइटोस्केलेटन, जो सेल का स्केलेटन है। as such we all know cell has skeleton, जैसे हमारे बॉडी में स्केलेटन है, हमारे बोन्स है, ऐसे ही हर एक सेल के अंदर स्केलेटन होता है। ठीक है, तो आरबीसी के साइटोस्केलेटन में भी सेम स्ट्रक्चर होंगे, जैसे हम यू ऑल नो माइक्रोट्यूब्यूल्स, नॉर्मल जो सेल होता है इसके साइटोस्केलेटन में होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, फिर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और माइक्रोफिलामेंट्स। मेनली जो साइटोस्केलेटन, आरबीसी का जो साइटोस्केलेटन है दैट इज कंसिस्ट ऑफ एक्टिन एंड स्पेक्ट्रिन। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में, हियर यू कैन सी ये एक्टिन है, इसका एक्टिन का जो यू कैन सी हियर दिस एंड नेक्स्ट इज स्पेक्ट्रिन, जो कि मैंने बताया स्पेक्ट्रिन का यहाँ पे दिया हुआ है, दिस वन। तो दिस एक्टिन एंड स्पेक्ट्रिन ये दोनों एंकर्ड मीन्स वो स्ट्रेंथन कौन करेगा? दूसरा एक प्रोटीन है जिसे कहते हैं एंकायरिन। दिस एंकायरिन इज ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, अभी स्पेक्ट्रिन अगर एब्सेंट है, स्पेक्ट्रिन एब्सेंट है तो वो कंडीशन को कहेंगे हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस। क्या होगा? स्पेक्ट्रिन अगर एब्सेंट है तो जो बायकॉन्केव शेप है दैट विल नॉट बी मेंटेन, इसके बदले वो शेप हो जाएगा स्फेरिकल, और जो डिजीज है उसे कहते हैं हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस, स्फेरिकल आरबीसी से। ना कुछ प्रॉपर्टीज आरबीसी, कल भी हमने डिस्कस किया था, एक प्रॉपर्टी है जो कि है रोले फॉर्मेशन। रोले फॉर्मेशन
जिसे हम कहते हैं पाइलिंग, यहाँ पे डायग्राम में दिखाया है रोले फॉर्मेशन। जब भी हम एंटीकोगुलेटेड ब्लड को वेस्टर्न पिपेट में रखेंगे तो क्या होगा, आरबीसीज दे सेटल डाउन एंड दैट इज रोले फॉर्मेशन। सेकेंड है स्पेसिफिक ग्रेविटी। आरबीसीज की स्पेसिफिक ग्रेविटी कल बताया था 1.092 टू 1.101। नेक्स्ट है पैक्ड सेल वॉल्यूम, वो भी कल डिस्कस किया। व्हाट इज पैक्ड सेल वॉल्यूम? volume of packed cell in percentage, sorry, that is packed cell volume, that is volume of cells, packed cells in percentage. Normal percentage tha about 42%. Okay? Then suspension stability. Suspension stability means, here you can see, whenever the blood is fluid and flowing, okay, यहाँ पे तो जो आरबीसीज है दे आर सस्पेंडेड प्रॉपरली, दैट इज सस्पेंशन स्टेबिलिटी। so it is the property of RBC due to which they remain suspended, यहाँ डायग्राम के साथ दिखाया हुआ है। और इसके लिए हमारे ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन दे आर रिस्पॉन्सिबल। so these are the properties. now नेक्स्ट इज वेरिएशन इन नंबर। आरबीसी का नंबर कभी बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है। कौन कौन सी सिचुएशंस है, कंडीशंस है? दो टाइप के वेरिएशंस रहेंगे, नंबर 1 फिजियोलॉजिकल, नंबर 2 पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल वेरिएशन मींस वो नॉर्मल है, अगर थोड़ा आरबीसी काउंट बढ़ गया कम हो गया दैट इज नॉर्मल। तो फिजियोलॉजिकल वेरिएशन में याद रखना है, फर्स्ट इज एज। एज में एट द टाइम ऑफ बर्थ आरबीसी काउंट हाईएस्ट रहेगा न्यू बॉर्न बेबी में, और वो कितना आएगा 8 to 10 मिलियंस पर क्यूबिक मिलीमीटर। एडल्ट में कितना होता है, वी हैव डिस्कस्ड 5.2 मिलियंस प्लस और माइनस 0.3 मिलियंस पर क्यूबिक मिलीमीटर मेल्स। इन फीमेल्स 4.7 मिलियंस प्लस और माइनस 0.3, जबकि न्यूबॉर्न बेबी में ये रहेगा 8 to 10 मिलियंस, दैट इज फिजियोलॉजिकल नॉर्मल। एंड विद इन 10 days it decreases because of hemolysis and it comes back towards normal. Second है gender. फीमेल्स में आरबीसी काउंट कम रहेगा, दो रीजन है। नंबर 1 दैट इज मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस इन फीमेल। सेकेंड रीजन ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन has less stimulating capacity than testosterone in males, तो फीमेल्स में ये कम आएगा। थर्ड हाई एल्टीट्यूड, अगर हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो आरबीसी काउंट बढ़ जाएगा। क्यों आरबीसी काउंट बढ़ रहा है? हाई एल्टीट्यूड पे हाइपोक्सिया होगा। हाइपोक्सिया मींस डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू द टिश्यू, डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू द टिश्यू, और ऑक्सीजन कम मिल रहा है, फिर किडनीज से स्टिमुलेट द एरिथ्रोपोएसिस बाय स्टिमुलेटिंग रीनल एरिथ्रोपोएटिक फैक्टर। अब हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, हाउ इज इट रेगुलेट। सो ये फिजियोलॉजिकल वेरिएशन है। और भी फिजियोलॉजिकल वेरिएशन में आएंगे एक्सरसाइज। आफ्टर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज भी हाइपोक्सिया क्रिएट करती है, ठीक है। तो एक्सरसाइज का जो हाइपोक्सिया है वो भी आरबीसी काउंट को इंक्रीज। इमोशनल कंडीशन, इसमें सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा तो इससे क्या होगा, स्प्लीन का कॉन्ट्रैक्शन होगा, और स्प्लीन कॉन्ट्रैक्शन से आरबीसी काउंट इंक्रीज जाएगा। देन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ऑल द एक्टिविटीज इंक्रीज होगी, क्योंकि ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हमारे बॉडी में टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इंक्रीज एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड इंक्रीज इन द आरबीसी काउंट। आफ्टर मील ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इंक्रीजेस, एंड ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो रहा है तो आरबीसी काउंट भी इंक्रीज, बिकॉज हाइपोक्सिया क्रिएट होगा, दैट इंक्रीजेस आरबीसी। तो आरबीसी काउंट इंक्रीज के कौन कौन से फिजियोलॉजिकल कॉजेस थे? नंबर 1 एज, सेकेंड जेंडर, थर्ड हाई एल्टीट्यूड, फोर्थ वन दैट इज मस्कुलर एक्सरसाइज, फिफ्थ वन इमोशनल कंडीशन, सिक्स्थ वन एनवायरमेंटल टेम्परेचर, एंड सेवेंथ आफ्टर मील। अभी आएगा डिक्रीज आरबीसी काउंट। डिक्रीज आरबीसी काउंट, जैसे हमने बताया हाई एल्टीट्यूड पे आरबीसी काउंट इंक्रीज हो रहा है, व्हाई? बिकॉज हाइपोक्सिया, बैरोमेट्रिक प्रेशर कम हो जाएगा। तो सेम वे बैरोमेट्रिक प्रेशर जब बढ़ रहा है ना, अंडर द सी, तो आरबीसी काउंट डिक्रीज। ड्यूरिंग स्लीप,
During sleep, all the activities are suppressed. Suppression of activity. Okay? So that also decreases RBC count. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दिस इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डिक्रीज आरबीसी काउंट, जिसे हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल एनीमिया ऑफ प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी में क्यों आरबीसी काउंट बढ़ेगा? बिकॉज एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड वॉल्यूम और प्लाज्मा वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है. एंड बिकॉज ऑफ increase in this extracellular fluid volume, there is hemodilution. Hemodilution means वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो ब्लड डाइल्यूट रहेगा, तो जो भी आरबीसी है दैट इज सीम्स टू बी लेस. दैट इज नोन एज फिजियोलॉजिकल एनीमिया ऑफ प्रेगनेंसी. सो दिस आर कॉजेज, फिजियोलॉजिकल कॉजेज की बात की. ठीक है, अभी आएगा पैथोलॉजिकल. पैथोलॉजिकल कॉजेज में मेनली 2 वेराइटीज है. एक है हमारा एनीमिया, दूसरा है पोलीसाइथेमिया. एनीमिया मीन्स डिक्रीज इन द आरबीसी काउंट or decrease hemoglobin that results in decrease in the oxygen carrying capacity. मैंने अभी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी आपको बताया. 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन कैरी कर रहा है? 1.34 ml. ठीक है, तो 15 ग्राम कितना कैरी करेगा? अबाउट 20 ml. तो जब भी हमारा आरबीसी कम होगा या हीमोग्लोबिन कम होगा तो क्या इफेक्ट आएगा? दैट इज डिक्रीज इन द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी. So this is anemia. Second is polycythemia. Opposite condition है, यहाँ RBC count increase. We will discuss in detail all these pathological variations. Now, so polycythemia we are discussing here. Anemia is a separate topic. Anemia का तो अलग से question आ रहा है, तो anemia हम अलग से discuss करेंगे. तो polycythemia क्या है? Polycythemia मैंने जैसे बताया, increase in the RBC count. Polycythemia के 2 types हैं. Number 1 is physiological polycythemia. Number 2 that is pathological polycythemia. फिजियोलॉजिकल कब होता है? आरबीसी काउंट बढ़ा हुआ है, जो मैंने फिजियोलॉजिकल कॉजेज बताया हमने, है ना. एट बर्थ कितना था? 8 to 9 मिलियन और मैक्सिमम 10 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर. ठीक है, और हाई एल्टीट्यूड ऐसे बताया, हाई एल्टीट्यूड पे हाइपोक्सिया है. हाइपोक्सिया आरबीसी प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा, तो दैट इज पोलीसाइथेमिया. और पैथोलॉजिकल पोलीसाइथेमिया क्या है? पैथोलॉजिकल के भी अगेन 2 टाइप्स है. प्राइमरी पोलीसाइथेमिया जिसे कहते हैं पोलीसाइथेमिया वेरा, और सेकेंडरी पोलीसाइथेमिया. कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछते हैं, व्हाट इज पोलीसाइथेमिया वेरा एंड व्हाट इज सेकेंडरी पोलीसाइथेमिया. विल डिस्कस. तो पोलीसाइथेमिया वेरा और प्राइमरी पोलीसाइथेमिया, व्हाट इज इट? ये एक माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर है, जैसे कि जिसे हम कह सकते हैं मैलिग्नेंसी रेड बोन मैरो की, जिसके अंदर आरबीसी काउंट तो बढ़ जाएंगे, साथ साथ में डब्ल्यूबीसी भी बढ़ेंगे, बिकॉज रेड बोन मैरो हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सभी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है, तो आरबीसी काउंट बढ़ के मैक्सिमम इट मे बी अप टू 14 मिलियंस, जो हमारे 5 मिलियंस के अराउंड थे वो हो जाएंगे 14 मिलियंस पर क्यूबिक मिल. डब्ल्यूबीसी भी बढ़ जाएंगे बिकॉज दैट इज मैलिग्नेंट कंडीशन ऑफ रेड बोन मैरो. नॉर्मल डब्ल्यूबीसी का काउंट हमारा है 4000 टू 11,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर. नॉर्मल काउंट सब याद रखने हैं. ठीक है, यहाँ पे वो हो जाएगा अबाउट 24,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर. So this is primary polycythemia. Second is secondary polycythemia. Secondary polycythemia means cause is something else. दूसरा कोई कारण है जिसके हिसाब से आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जैसे कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, किसी को क्रॉनिक अस्थमा है तो हाइपोक्सिया होगा बिकॉज ऑफ अस्थमा, एंड दैट स्टिमुलेट्स आरबीसी प्रोडक्शन फ्रॉम रेड बोन मैरो. सेकेंड है कार्डियक फेलियर है, हार्ट फेलियर है, तो ब्लड सर्कुलेशन में नहीं जा रहा है, ब्लड सर्कुलेशन में नहीं जा रहा है, फिर हाइपोक्सिया होगा. हाइपोक्सिया स्टिमुलेट्स एरिथ्रोपोइटिन. कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग. कार्बन मोनोऑक्साइड अगर पॉइजनिंग है तो क्या होता है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाता है, और हीमोग्लोबिन कैन नॉट बाइंड विद ऑक्सीजन, so that produces anemic hypoxia. Hypoxia की जैसी कंडीशन हो जाती है, that is anemic hypoxia, and that again stimulates RBC production. And poisons by some chemicals, वो भी same way में act करते हैं, they produce hypoxia and that results in polycythemia. These are secondary polycythemia, means red bone marrow का कोई disease नहीं है, but because of some other disease red bone marrow gets stimulated to produce RBC. Okay? Now
वेरिएशंस इन साइज ऑफ आरबीसी, आरबीसी की साइज में वेरिएशंस, नॉर्मल साइज दैट इज नॉर्मल वॉल्यूम हमने किया था 78 टू 96 क्यूबिक माइक्रोन। अभी माइक्रोसाइट्स में साइज इज रिड्यूस लेस देन दिस 78, मैक्रोसाइट्स इंक्रीज मोर देन दिस 96, एंड एनआइसोसाइटोसिस और एनआइसोसाइट्स दैट इज विदाउट यूनिफॉर्म साइज, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, so that is एनआइसो। You can see here in the diagram. These are anisocytosis. इसे कहते हैं variations in size. These are macrocytes, बड़े बड़े हैं. These are microcytes. तो microcytes है. What are the causes for microcytes? Microcytes RBC और decrease in the size. कौन कौन सी कंडीशन में रहेगी? एक तो है कॉमन वन दैट इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जिसे हम कहते हैं माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। दूसरा है अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो सपोज ये हमारा सेल है, बाहर का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है अंदर से, तो क्या होगा, देयर इज ऑस्मोसिस ऑफ फ्लूइड बाहर चला जाएगा यहाँ पे, तो आरबीसी क्रीनेटेड और स्मॉल हो जाएगी। और थर्ड, प्रोलॉन्ग्ड और फोर्सफुल ब्रीदिंग दैट आल्सो प्रोड्यूसेस hypoxia, increased production of RBC, and they are microcytes. Next is macrocytes, large size. मैक्रोसाइट्स कॉमनली कौन से एनीमिया में होता है वो याद रखना है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, जिसमें आरबीसी, वी विल डिस्कस एनीमिया के साथ, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में आरबीसी की साइज बढ़ जाती है। और दूसरा यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हुआ था, अगर सपोज ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड का कम हो गया यहाँ पे, तो क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर सेल्स का ज्यादा है और दैट इज ऑस्मोसिस, फ्लूइड एंटर्स इनसाइड द सेल। फ्लूइड हमेशा ऑस्मोसिस का होता है फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक, तो बिकॉज ऑफ दिस ऑस्मोसिस सेल्स दे बिकम लार्ज मैक्रोसाइट। और एनआइसोसाइटोसिस मींस एंड डिफरेंट शेप्स आर देयर, फोकस में होगा पर्निशियस एनीमिया में, वी विल डिस्कस इट नाउ। वेरिएशंस इन वेरिएशंस इन शेप ऑफ आरबीसी। शेप में वेरिएशन में एक आएगा क्रीनेशन, जैसे मैंने बताया माइक्रोसाइट्स जो होते हैं ना वो ऐसे ऐसे क्रीनेटेड मार्जिन होते हैं, तो क्रीनेशन ऑफ मार्जिन। आरबीसी श्रिंक हो जाते हैं, जैसे मैंने बोला ना कि सपोज ये आरबीसी है, बाहर का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर ज्यादा है तो फ्लूइड बाहर जाएगा, तो जो सेल्स होता है वो माइक्रोसाइट्स और क्रीनेटेड हो जाएंगे। सेकेंड है स्फेरोसाइटोसिस, स्फेरिकल आरबीसी, बाइकॉनकेव, नॉर्मल शेप इसका है बाइकॉनकेव, इसके बदले हो जाएंगे स्फेरिकल। देन एलिप्टोसाइटोसिस, एलिप्टिकल शेप, ये नॉर्मल शेप है बाइकॉनकेव, इसके बदले आएंगे एलिप्टिकल। लाइक सिकल सेल एनीमिया में आपने आगे भी पढ़ा होगा, लाइक दिस सिकल शेप सेल्स। एंड पोइकिलोसाइटोसिस, जिसमें शेप अनयूजुअल है, कुछ पक्का शेप नहीं है, कोई भी शेप के आरबीसी हो सकती है। नाउ नेक्स्ट इज वेरिएशन इन द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या क्या वेरिएशन है वी विल डिस्कस। तो एक है जो फर्स्ट वाला डायग्राम है यहाँ पे, जिसे कहते हैं पंक्टेड बेजोफिलिया। पंक्टेड मीन्स इसमें बेजोफिलिया आरबीसी है ना, उसमें बेजोफिलिक मटेरियल का डॉट रहेगा, और ये लेड पॉइजनिंग में इट इज सी। दूसरा है गॉबलेट रिंग, यहाँ पे देख रहे हैं छोटी सी रिंग दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये वाला गॉबलेट रिंग इज प्रेजेंट, वो भी कुछ एनीमिया में, सम टाइप्स ऑफ एनीमिया गॉबलेट रिंग इज प्रेजेंट। एंड थर्ड हॉवेल जॉली बॉडी, ये रहा यहाँ पे हॉवेल जॉली बॉडी, दैट इज न्यूक्लियर फ्रेगमेंट, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस के थोड़े थोड़े फ्रेगमेंट्स रहेंगे, दैट इज नोन एज हॉवेल जॉली बॉडी। नाउ लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी की लाइफ स्पेन कितनी है, दैट इज 120 डेज अराउंड। और इसके बाद आरबीसी इज देयर डिस्ट्रॉयड बाय द रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स। Sorry, there is some live chat. Let me doesn't let oxygen bind with heme. Now, next is ये जो आरबीसी है आफ्टर दे कंप्लीट द लाइफ स्पैन 120 डेज उनके खत्म हो गए, फिर क्या होगा,
जो आरबीसी है वो फ्रेजाइल हो जाएंगे, इसकी जो सेल वॉल है ना दैट इज फ्रेजाइल। तो जैसे भी वो छोटी छोटी कैपिलरीज स्प्लीन की कैपिलरीज में पास होंगे देन दे गेट डिस्ट्रक्ट। और डिस्ट्रक्शन से क्या रिलीज होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स में दे आर डिस्ट्रॉयड और उसमें से रिलीज हो रहा है हीम, यहाँ पे दिस वन, एंड ग्लोबिन। हीम में से अगेन देयर इज रिलीज ऑफ आयरन, जो आयरन है वो आयरन के स्टोर में चला जाएगा लीवर में, यहाँ पे फेरिटीन, ट्रांसफेरिटीन, ट्रांसफेरिटीन के फॉर्म में जाके फेरिटीन में स्टोर हो जाएगा। एंड जो नेक्स्ट है दैट इज ग्लोबिन। ग्लोबिन में से अमाइनो एसिड्स बनेंगे, अमाइनो एसिड्स फिर से यूज हो जाएंगे प्रोटीन सिंथेसिस। अभी रह गया आपका हीम, और नेक्स्ट था हीम में से आयरन, और नेक्स्ट वन इज पोरफायरिन। ये पोरफायरिन जो है 4 पायरोल रिंग, इसमें से बनेगा आपका बिलिरुबिन। ठीक है, और ये जो बिलिरुबिन है दैट विल गो टू लीवर और यहाँ से फिर एक्सक्रीट होगा। नॉर्मल बिलिरुबिन, आई थिंक ऑल ऑफ यू आर नोइंग नॉर्मल लेवल ऑफ बिलिरुबिन, यहाँ पे बताया है मैंने, यहाँ पे लिखा भी हुआ है 0.5 to 1.5 मिलीग्राम परसेंटेज, कल भी हमने डिस्कस किया था नॉर्मल वैल्यू। ठीक है, तो जब हीमोलाइसिस बढ़ जाता है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बढ़ेगा, ठीक है, तो ये वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं जॉन्डिस। जॉन्डिस का एक टाइप है हीमोलाइटिक एनीमिया और हीमोलाइसिस। ठीक है, तो हियर यू कैन सी नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन है, नॉर्मल आरबीसीज है जिनका डिस्ट्रक्शन होगा, हीमोग्लोबिन रिलीज होगा और उसमें से बिलिरुबिन बनेगा, दैट इज नॉर्मली 10% आरबीसीज आर डिस्ट्रॉयड डेली। और जब 10% डिस्ट्रॉय होते हैं तो इसमें से 0.6 ग्राम हीमोग्लोबिन रिलीज होगा और दैट इज responsible for our normal bilirubin level. Sorry. Now, how can we determine the lifespan of RBC? जैसे हमने बताया ना RBC की लाइफ स्पैन है 120 डेज, तो 120 डेज कैसे डिटरमाइन करेंगे कि 120 डेज है? उसके लिए जो मेथड है जिसे कहते हैं रेडियो आइसोटोप मेथड। हियर व्हाट वी डू इज आरबीसी जो हमारे सर्कुलेशन में है उसे हम टैग करते हैं। किससे टैग करेंगे? सॉरी, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। जो रेडियो एक्टिव, आइदर हम आयरन लेंगे या रेडियो एक्टिव क्रोमियम लेंगे। ठीक है, रेडियो एक्टिव आयरन और क्रोमियम टैग करेंगे किसके ऊपर? आरबीसी के ऊपर। एंड वी विल कंटिन्यूअसली वॉच देम फॉर हाउ मेनी डेज दिस रेडियो एक्टिव आयरन और क्रोमियम इज प्रेजेंट इन सर्कुलेशन। जब तक आरबीसी सर्कुलेशन में क्रोमियम और आयरन वी कैन फाइंड, so we can say that this is the lifespan of RBC. Now next is functions of RBC. सबसे पहला फंक्शन है that we all know, हीमोग्लोबिन का फंक्शन, that is ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा? लंग्स टू द टिश्यू, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम टिश्यूज टू द लंग्स। ऑक्सीजन मेनली 97% जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके ट्रांसपोर्ट होता है। हीमोग्लोबिन कंबाइंस विद ऑक्सीजन। सेकेंड है कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट 2 फॉर्म में होता है। नंबर 1, 23% जो कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पे 23%, दैट इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ कार्बामीनो हीमोग्लोबिन यहाँ पे। ठीक है, और जो 70% है वो बाइकार्बोनेट फॉर्म में ट्रांसपोर्ट। ठीक है, वी विल डिस्कस इन डिटेल विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। So that is first function of RBC, transport of oxygen and carbon dioxide. Next है इसका function buffering action. Hemoglobin is a very good buffer. Hemoglobin bind होगा H plus के साथ और क्या बनाएगा? HHB, reduced hemoglobin. That is a good buffer. So it has very good buffering power. जो extra H plus ion है उसके साथ bind हो जाए। थर्ड इसका फंक्शन है that is blood group determination. हमारा जो ब्लड ग्रुप है ना, ए बी या फिर ए बी ओ, पॉजिटिव नेगेटिव, सो फॉर ऑल दैट वी हैव एंटीजेंस एंड दिस एंटीजेंस आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। so these are the functions of, you can see here, RBC. now next topic, very important one, एरिथ्रोपोएसिस। कई बार शॉर्ट नोट फुल क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, प्लीज बी अटेंटिव। एरिथ्रोपोएसिस, व्हाट इज एरिथ्रोपोएसिस? सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन। एरिथ्रोपोएसिस मींस ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ आरबीसीज, दैट इज एरिथ्रोपोएसिस। अगर क्वेश्चन है हीमोपोएसिस,
तो हीमोपोएसिस में सभी सेल्स आएंगे, ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ all the blood cells, RBCs, WBCs and platelets, that is hemopoiesis. Okay, now sites of erythropoiesis. erythropoiesis कहाँ पे हो रहा है? फीटल लाइफ में एरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट स्टेज है जिसे कहते हैं मीजोब्लास्टिक स्टेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट 3 months में यॉक्सिक, दैट इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। सेकेंड 3 months, थर्ड मंथ में इसके बाद स्टार्ट होगा, दैट इज हिपैटिक स्टेज। हिपैटिक स्टेज में आरबीसी प्रोडक्शन होगा, दैट इज इन द लीवर एंड स्प्लीन। And myeloid stage, third, last 3 months of pregnancy, RBC production, that is small amount from liver and spleen but mainly from bone marrow. Okay, यहाँ पे चालू है liver spleen में, डायग्राम में you can see here, but mainly from the bone marrow. In newborn babies, that is from bone marrow. ठीक है, अभी कौन से bone marrow में से RBC production होती है? Up to 5 years of age, 5 साल की एज तक red bone marrow is present in all the bones. In all the bones, the child has the red bone marrow. So RBC production, that is from all the bones up to 5 years of age. Okay? Then 6 to 20 years. 6 to 20 years आप लोगों के एज में, 20 years तक कहाँ पे प्रोडक्शन रहेगा? लॉन्ग बोन्स एंड मेम्ब्रेनस बोन्स। मेम्ब्रेनस बोन्स को हम कहते हैं फ्लैट बोन्स भी कहते हैं। फ्लैट बोन्स में आएगा स्कल बोन्स, फिर याद हो तो स्टर्नम, स्कैपुला, हिप बोन्स, दे ऑल आर मेम्ब्रेनस बोन्स। तो 6 to 20 years तक रेड बोन मैरो हमारा होगा लॉन्ग बोन्स में और मेम्ब्रेनस। तो आरबीसी प्रोडक्शन होगा यहाँ पे। और आफ्टर 20 years एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स, यहाँ पे याद रखना है, यहाँ लॉन्ग बोन्स है, यहाँ इसके एंड्स ओनली। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन, यहाँ फीमर है तो एंड मेम्ब्रेनस बोन्स, these are the sites for erythropoiesis. Yeah? Now process of erythropoiesis, एरिथ्रोपोइसिस सबसे पहले आएगा हमारा, यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं, देयर आर स्टेम सेल्स। स्टेम मीन्स लाइक यू कैन सी दिस इज, कोई ट्री है तो उसका स्टेम रहेगा यहाँ पे, जिसमें से सब कुछ बनेगा, है ना, फ्लावर्स भी बनेंगे, इसके लीव्स भी बनेंगे, तो स्टेम सेल्स उसे कहते हैं। तो स्टेम सेल्स, यहाँ पे उसका पूरा नाम है प्लूरीपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स। क्यों इसे कहेंगे प्लूरीपोटेंट? प्लूरीपोटेंट मीन्स मल्टीपल सेल्स ये एक ही सेल्स में से बनेंगे। तो ये जो सेल है वो है प्राइमरी सेल्स, और ये सेल्स दे आर कैपेबल ऑफ डिफरेंशिएटेड इनटू ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। इसमें से ये सब सेल्स बनेंगे, इसीलिए इसका नाम है, याद रखना है, प्लूरीपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स। दूसरा नाम है इसका अनकमिटेड स्टेम सेल्स। और अनकमिटेड स्टेम सेल्स में नेक्स्ट स्टेप में हमारे बनेंगे कमिटेड स्टेम सेल्स। कमिटेड मीन्स अभी ये फिक्स हो जाएंगे कि इसमें से आरबीसी बनना है, मेगा कैरियोसाइट्स है, या फिर ग्रेनुलोसाइट्स, मोनोसाइट्स बनेंगे, या फिर लिम्फोसाइट्स बनेंगे। तो दिस इज फर्स्ट स्टेप। नाउ यू कैन सी हियर, पहले हमने देखा प्लूरीपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स आ गए, फिर उसमें से बन रहे कॉलोनी। ये ट्राई टू रिमेम्बर दिस चार्ट, तो पूरा ही एरिथ्रोपोइसिस अच्छे से हो जाएगा। तो उसमें से बन रहे कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट, और दूसरे आएंगे लिम्फॉइड स्टेम सेल। लिम्फॉइड स्टेम सेल्स है जिसमें से हमारे लिम्फोसाइट्स बने, और ये जो कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट है, अगेन इसमें से और 3 टाइप्स के सेल्स बनेंगे। CFU, उसका पूरा नाम याद रखना है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। E मीन्स एरिथ्रोसाइट्स, बिकॉज इसमें से एरिथ्रोसाइट्स ही बनेंगे, आरबीसी ही बनेंगे। फिर कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट M का है मेगा कैरियोसाइट्स। जो मेगा कैरियोसाइट्स है इसमें से हमारे बनेंगे प्लेटलेट्स। थर्ड है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट GM, ग्रेन्युलोसाइट्स और मोनोसाइट, जिसमें से हमारे ग्रेन्युलोसाइट्स कौन कौन से हैं? न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, और मोनोसाइट्स बनेंगे जो कि ए ग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक थिंग। इसके बाद और क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दिस इज जस्ट द रिवीजन दैट व्हाट वी हैव डिस्कस।
ये हमारे अनकमिटेड स्टेम सेल्स है जिसे हम कहते हैं प्लूरीपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स। अनकमिटेड, उसमें से बनेंगे कमिटेड सेल्स, फिर कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट एंड लिम्फोइड स्टेम सेल्स। कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट्स में से बनेंगे कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट्स, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगा कैरियोसाइट एंड कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगा कैरियोसाइट एंड ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट। ठीक है, हियर इट इज। नाउ हम लोग अभी बात कर रहे हैं एरिथ्रोपोइसिस की, तो हम ये एक सीरीज की बात करेंगे जो हमने आगे देखा है, दिस सीरीज वी विल डिस्कस दिस वन, ओनली दिस वन। ये सब बाद में बात करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट फोकस ऑन दिस नाउ। सो बेसिकली क्या चेंजेस होते हैं जब एरिथ्रोपोइसिस हो? एक तो सेल का साइज डिक्रीज, दिस वन, ये देख रहे हैं, बड़ा सेल है फिर छोटा हो जाएगा। सेकेंड, न्यूक्लियोलाई एंड न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस है, धीरे 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 वो डिसअपियर हो रहा है। थर्ड थिंग, हीमोग्लोबिन पहले वाले सेल में नहीं है, धीरे धीरे हीमोग्लोबिन अपियर हो रहा है। एंड फोर्थ, हीमोग्लोबिन अपियर होगा और न्यूक्लियोलाइट डिसअपियर होंगे, तो दैट इज चेंज इन द स्टेनिंग प्रॉपर्टीज। पहले जो ब्लू दिख रहा है बेसोफिलिक है, अभी वो रेड दिखेगा इओसिनोफिलिक। ठीक है, सो दिस आर द चेंज। नाउ अभी स्टेजेस है, इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कौन कौन से स्टेजेस है, कौन कौन से सेल रहेंगे। सो पहले आएंगे फर्स्ट वन, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। Second, try to remember early normoblast. We will discuss in detail. Early normoblast. Third, intermediate normoblast. Fourth, late normoblast. We will discuss one by one. Fifth, reticulocyte, and sixth one is matured RBC. Okay? Now, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाला, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट सबसे बड़ा सेल है, यहाँ पे आप यहाँ पे दिस वन, दिस इज लार्जेस्ट सेल, ठीक है। इसकी साइज होगी अबाउट 20 माइक्रोमीटर डायमीटर। इसके अंदर न्यूक्लियस भी रहेगा, यहाँ सेल में देख सकते हैं लार्ज न्यूक्लियस है, उसके साथ 2 और मोर न्यूक्लियोलाई भी है। इसके अंदर रेटिकुलर नेटवर्क भी रहेगा। हीमोग्लोबिन अभी नहीं है, तो हीमोग्लोबिन एब्सेंट। और साइटोप्लाज्म है वो ब्लू कलर का रहेगा बिकॉज हीमोग्लोबिन इज एब्सेंट, सो दैट इज बेसोफिलिक और ब्लू साइटो। तो दिस इज कैरेक्टर और मॉर्फोलॉजी ऑफ प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। नेक्स्ट आएगा अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। अभी साइज कम हो रही है, 20 था, अभी इसमें से हो रहा है 15 माइक्रोन डायमीटर। न्यूक्लियलाई अभी डिसअपियर होना स्टार्ट हो रहा है। क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस हो जाएगा न्यूक्लियस का, ठीक है। साइटोप्लाज्म अभी हीमोग्लोबिन एब्सेंट है, तो साइटोप्लाज्म अगेन दैट इज ब्लू, ठीक है। और इसका दूसरा नाम है, बिकॉज ब्लू कलर का है तो इसे हम कहेंगे बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट। हमेशा याद रखना है, जब ब्लास्ट आता है, ब्लास्ट दैट इज इमेच्योर सेल, और जब भी हम एरिथ्रोसाइट बात करें कोई भी सेल में, अगर साइट आएगा तो वो मेच्योर होगा, ब्लास्ट इमेच्योर। ठीक है, अभी नेक्स्ट है इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसोफिलिक के बाद ये वाला इंटरमीडिएट, दिस वन। साइज अभी और रिड्यूस होगा, साइज रहेगा 10 to 12 माइक्रोन डायमीटर। न्यूक्लियस अभी भी प्रेजेंट है। मेच्योर आरबीसी डजंट हैव न्यूक्लियस, वी हैव डिस्कस्ड। क्रोमेटिन ज्यादा अभी कंडेंस्ड हो रहा है। हीमोग्लोबिन starts appearing from this stage, intermediate normoblast, so hemoglobin is present. अगर हीमोग्लोबिन आ रहा है, now cytoplasm starts becoming acidic, so it will be stained with the acidic plus basic dye both. तो ये जो नॉर्मोब्लास्ट है इसका दूसरा नाम है दैट इज polychromatophilic erythroblast. Poly means both the dyes can stain this erythroblast, ठीक है। देन आएगा लेट नॉर्मोब्लास्ट। अभी उसकी साइज और कम हो रही है, 8 to 10 माइक्रोन डायमीटर। यहाँ पे देख सकते हैं दिस वन। न्यूक्लियस छोटा हो रहा है, इंक स्पॉट, इट इज लाइक इंक स्पॉट। hemoglobin quantity increases and therefore cytoplasm becomes acidophilic. Cytoplasm acidophilic हो जाएगा, therefore this cell is known as orthochromatic erythroblast. Okay?
Orthochromatic, that is stained with the acidic dye, acidophilic cell. Okay? Now, next आएगा reticulocyte. Here in this diagram you can see this reticulocyte. Reticulocyte, that is immature RBC. RBC having reticulum. You can see here network. ये रेटिकुलम किसका बना हुआ होता है? दैट इज मेड अप ऑफ रेमिनेंट ऑफ जो डिसइंटीग्रेटेड ऑर्गेनेली है जो आरबीसीज के, तो डिस्ट्रक्शन होके दैट इज फॉर्मेशन ऑफ रेटिकुलम. यहाँ पे और दिस रेटिकुलोसाइट्स दे आर स्टेन विद द सुप्रावाइटल स्टेन. सुप्रावाइटल स्टेन जो है प्रीलियल क्रिस्टल ब्लू, दैट स्टेन्स दिस रेटिकुलोसाइट. नॉर्मल रेटिकुलोसाइट का परसेंटेज एडल्ट में रहेगा 1%, सर्कुलेशन में 1% में रेटिकुलोसाइट्स आर देयर, और न्यूबॉर्न बेबीज में ये ज्यादा रहेगा 2 to 6%, दैट इज नॉर्मल. इसका साइटोप्लाज्म बेसोफिलिक है बट रेटिकुलम इज देयर. नेक्स्ट वन इज मैच्योर एरिथ्रोसाइट. अभी जो मैच्योर एरिथ्रोसाइट है इसके अंदर रेटिकुलम दैट डिसअपियर्स एंड द शेप इज बाइकॉन्केव. जो मेच्योर बन गया है उसका शेप है अभी बाइकॉन्केव शेप. ठीक है, साइज नॉर्मल साइज आ जाएगा 7.2 माइक्रोन. एरिथ्रोसाइट्स अभी दिस इज मेच्योर दैट एंटर्स इन द सर्कुलेशन. नाउ व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ एरिथ्रोपोइसिस? ये जो सब स्टेप्स है कितना ड्यूरेशन लेता है? फ्रॉम प्रो एरिथ्रोब्लास्ट टू रेटिकुलोसाइट, दिस स्टेज अप टू दिस स्टेज इट टेक्स 5 days टू कंप्लीट. और reticulocytes to RBC, ये step, it takes 2 days to complete. So this is all about various stages or various steps of erythropoiesis. Okay? तो यहाँ पे हम अपना सेशन एंड करते हैं. फैक्टर्स नेसेसरी फॉर erythropoiesis is still left because of lack of time, because we have completed our session. We'll continue in the next class, factors necessary for erythropoiesis. In tomorrow's class, we will also discuss regarding hemoglobin. That is also one of the important topic. Okay? So please stay with us, like, subscribe our channel. Okay? Thank you. Thank you all.